नमस्ते भारत राइजिंग में आपका स्वागत है। एंड आज वाकई बहुत दिनों के बाद खुशी हो रही है, वाकई हो रही है। एंड मुझको ही नहीं है, आई थिंक everyone in this country is really happy, and you ought to be happy. It is a happy occasion. Now a lot of secularists and Pakistanis or Bangladeshis और उनके जो प्रेमी हैं, they would be asking this question, इसमें क्या खुशी होने की बात है? तो जिस तरीके से there were people who were celebrating it on social media. Now you'll be like, oh yeah, ऐसे कुछ लोग तो होते हैं, आप क्यों उनको ध्यान देते हो? So we don't care anymore. Operation Sindoor. So I got to know about this, I would say at 3 a.m. and 1 o'clock 1 a.m. 1:05 in the morning the strikes were carried out, and that has been so amazing. So Operation Sindoor एक बहुत ही aptly chosen name है, and why not? Because that is what those Pakistani terrorists were aiming to do. वो सिंदूर मिटाने आए थे। तुम धर्म पूछ के मारने आए थे, हम धर्म बता करके मारेंगे। जब तुमको धर्म ही इतना है ना, तो अब वही होगा जो तुमने जिसको अटैक किया। Now to be very honest, at the end of the day, you can have your own disagreements or your own agreements with how the current BJP dispensation is working, or certain actions that have been taken by our government, or you could say Prime Minister at the end of the day. But such a decisive step and such a decisive action could and has only been taken none other by only and our only PM Narendra Modi. That's it. Simple. No other Prime Minister in my recent memory serves this kind of a treatment, a belt treatment, even worse than that treatment has to be meted out to Pakistan. Now let's just go a little bit into the flashback, and then we'll have a talk about. So 14th April is the day when that idiotic Mullah Munir came out, stated in front of the abroad living Pakistanis that a two-nation theory is imperative. Hindus and Muslims cannot live with each other. हमारा खून अलग है, हमारी संस्कृति अलग है, हमारा सब कुछ अलग है। उस आदमी ने जब इसको इतनी बेधड़कता और बेशर्मी से आकर के बोला, तब कोई ह्यू एंड क्राई आपको सुनाई नहीं दिया, ना ही ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे, ना ही पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पे, और हमारे यहाँ तो बोलना बेकार है। सो इफ यू टॉक अबाउट लाइक दैट इन दोज टर्म्स, देन वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट 22 अप्रैल की नींव 14 अप्रैल की स्पीच में नहीं रखी गई थी, उसकी नींव बहुत पहले रखी गई थी। 14 अप्रैल को ट्रेलर दिखाया गया था, फुल मूवी 22 अप्रैल को दिखाई गई थी। ऑलराइट, सो नाउ दैट बीइंग सेड, we ought to understand that when 22nd of April happened, it was a blatant attack which took place on the Indian soil. Yes, it was shown. And अब जब कल रात को आज रात को ये अटैक हुआ है, तो पाकिस्तानी इतने तिल मिला क्यों रहे हैं? Pakistanis right now are in a state of utter confusion, because एक तरफ अगर उन्होंने इस अटैक को मान लिया कि हाँ है, और वैसे वो मान भी रहे हैं कि हाँ है, ये एक ऐसी कंट्री है जो कि नहीं कभी मानती है, वो अपने सोल्जर्स तक को एक्सेप्ट नहीं करती है। इट डजंट इवन एक्सेप्ट इट्स ओन सिटीजन्स। इट विल शूट एनीबडी हु कम्स इन इट्स ओन वे, बी इट अ पॉलिटिशियन हु इज नॉट सर्विंग देयर पर्पस एनीमोर, यू विल बी किल्ड. As simple as that. And so when it is a country like Pakistan, when they're accepting this, that okay fine, this actually happened on our soil, you ought to understand that they are now not in a position to actually take this to the next level. They cannot afford to escalate this war. They cannot. Right now, India has only targeted the terror hideouts which were there in Pakistan. So post that now. So if India actually, we would actually prefer Pakistan retaliating, because now Pakistan knows that it cannot afford to have a retaliatory strike with India. Because now if they do, in the ladder of escalation, if this just goes up, you will understand this fact that Pakistan might attack our military posts or our military installations, or it will attack the civilians. In that case, it will be a full-fledged war that will be taken from the side of Pakistan. Now, if we say about that okay, fine, Pakistan hasn't done this. So, like we have always said that अगर आपने इस चीज़ को नहीं किया है, आप नहीं मानने को तैयार हो, तो आप क्यों रो करके पूरी दुनिया के सामने जा रहे हो? भाई क्यों रो रहे हो? चोर की दाढ़ी में तिनका इज अ सेइंग दैट हैज बीन हर्ड. आप अगर इतने ही साफ सुथरे और सो कॉल्ड पाकी हैं, देन व्हाई आर यू गोइंग अहेड एंड बेगिंग इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड? नाउ यू आर गोइंग अहेड एंड बेगिंग इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड, स्पेशली जिनका आप, मैं ये कहूँगी in a more civilized manner, that you are a keep of China. Yes, that is what you are, because आपके पास China, आप क्या है? आप China का एक dumping background है, nothing more than that. China is just using you as a proxy. Now the fact is because you are beggars, and beggars are never choosers. You have no other option but to act as per the terms dictated by China. You are not in a position to manage anything.
that is, what you want to go ahead with. So China is using you as a proxy. Fair again. Simple. Why are you going with the begging bowl in front of China, in front of Turkey, and in front of OIC? Because आप US के सामने जा रहे हो, रशिया के सामने जा रहे हो, इजराइल के सामने जा रहे हो, सबके सामने जा रहे हो, इजराइल के सामने तो नहीं. Oh, Israel's are Yahudis. Sorry, I am so sorry about that. So yeah, I mean, आप इतने पैदल किस्म की कौमों की आप इनके सामने जा करके लेकर के अपना कटोरा लेके जा रहे हो. क्यों लेके जा रहे हो अगर आपने कुछ किया ही नहीं है? You were ready for an unbiased, impartial kind of सेटअप करना चाह रहे थे ना, जहाँ पर पे यू वांटेड कि या लेट्स जस्ट हैव दिस की एक अनबायस्ड जिसके अंदर हम प्रोब कर लें. क्यों कर लें जब आप इन्वॉल्व नहीं, सो कॉल्ड आप इन्वॉल्व नहीं हैं? तो क्यों आपके अंदर इतना डर बैठा हुआ है? क्यों आपके अंदर इतना डर बैठा हुआ है? आप इतने बेवकूफ़ किस्म के, योर ब्रेन डेड ज़ॉम्बीज, नथिंग. I would say even zombies have some sense because they know क्यों नहीं चाहिए क्या. You are absolutely brain dead. Your community is entirely brain dead. Now you are like, okay fine, Trump is condemning. No, Trump is not condemning. First things first, Trump is not condemning. भाई पढ़ना लिखना आता हो ना तो प्लीज़ जाकर के पूरा स्टेटमेंट सुनो, उसको स्टेटमेंट को पढ़ो और समझो. और नहीं आता है ना तो प्लीज़ किसी ऐप पे जाकर के डाल दो उसको, वो तुम्हें इंटरप्रेट करके बता देगा जिस भी भाषा में तुम्हें आता है. तो तुम्हें नहीं आता है, यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग ही हैज सेड. योर इडियोटिक मीडिया हाउसेज आर एक्चुअली ट्विस्टिंग एंड टर्निंग इट जस्ट बिकॉज दे नो कि हम जिस ऑडियंस को कैटर कर रहे हैं, दे आर एब्सोल्युटली स्टूपिड. And time and again, you prove that you are inherently nothing but stupid and vile. That's what you are. Now also if we say the fact that, okay fine, आपने बोला ट्रंप ने किया, okay चलो ट्रंप ने किया, क्या कर लेंगे ट्रंप? It is between India and Pakistan right now, right? And you are a sovereign nation. You are like, okay dude, हमारे यहाँ तुमने आकर के बच्चे को मारा, टेरर इंस्टॉलेशंस पे हिट किया है, वहाँ बच्चा कर क्या रहा था ये बताओ. What was a kid doing at a terror installation? What? No civilian attacks took place. Your stupid media, your stupid army, your stupid government is actually going ahead and spreading this lie that India hit. No, India did not hit. And if you have proofs, दिखाओ. गाजा की तरह करने की जरूरत नहीं है कि कैमरे के आगे कुछ और कैमरे के पीछे कुछ, तब से बैठ करके तुम लोग पैलेस्टाइन और ये इजराइल करे हो. तुम्हारी औकात नहीं है इजराइल से करने की, इसीलिए तुम लोग के जो ये लोग हैं ना सोशल मीडिया पे कमेंट्स करते रहते हो, बॉयकॉट करो मैकडॉनल्ड्स को, बॉयकॉट करो इसको. भाई तुम्हारे पास है क्या पहले भी बात तो बॉयकॉट करने के लिए? यू डू नॉट हैव any single thing in your pocket to boycott for. All right, anything and everything that has been left out in your country, आप उसको ही boycott कर लो. So just finish this bloody chapter. Anyway, you are a bigger country. Now if you again come back to the fact, you cannot debate on economic fronts. No, you cannot do that. You are the one who is at a fault here right now, and so Modi is barbaric. All right, your citizens infiltrated our country. I am not going to be saying this कि हम लोग क्या कि लोग गलत थे, सही थे, सॉरी, वो भी गलत थे. लेकिन जब गलत होते हैं ना, टू रॉन्ग्स नेवर मेक अ राइट. सो फेयर इनफ, if the people who infiltrated our country, and infiltrators are not at all people who have come in officially. Infiltrators का मतलब पता है ना आपको? So if infiltrators have not come in officially, that means we as a country, to protect our rights, to protect our sovereignty, to protect our domestic and internal security matters, we have the entire right to deport these people off. क्यों आप लोग को मिर्च लगती है जब हम इन illegal पाकिस्तानी से करते हैं? Why were you deporting Afghanis some months ago? Why? Because you were fearing for your own internal security crisis. So if we do the same with Pakistanis, because you are a hypocrite class, you cannot afford to do that. You do not have a standing bone. That's it. Simple. स्पाइन में नहीं कहूंगी, एक सीधी हड्डी नहीं है तुम्हारे शरीर के अंदर, तुम बकवास करने चले हो बैठ करके, दूसरों के सामने बैठ करके. यू आर जस्ट ब्लैबरिंग लाइक अ फूल. व्हाट डू यू हैव इन योर पॉकेट्स टू शो ऑफ? नथिंग एट ऑल. योर मीडिया, योर स्टूपिड इडियोटिक बायस्ड मीडिया, इट इज शोइंग दैट इट शॉट 2 इंडियन एयरक्राफ्ट्स. वेयर इज, कहाँ है? झूठी फुटेजेस को लगा करके, ओ या फ्रॉडी है. लिसन, जो तुम लोग दूसरों को यू ट्राइंग टू एनकरेज योर कॉम, यू आर शोइंग आर एयरक्राफ्ट्स इन योर स्टूपिड वीडियोज. डूड, गेट अ लाइफ. That is how sickening you are. That is how stupid you are. That is how vile you are. Your celebrities, yes, now we'll come to your celebrities also. Your celebrities who were hankering कि भाई VPN से देख लो और ये कर लो और how stupid मोदी is, how भाई मोदी को तो गाली दे देना तुम लोग के लिए बड़ा आसान है. दो ना, अपने यहाँ के आसिम मुनीर को गाली दे सकते हो, अपने यहाँ की आर्मी को गाली दे सकते हो, उसमें तुम्हारी ना फट जाएगी गंदी वाली, क्योंकि अगले दिन तुम मरे हुए मिलोगे या शायद मिलोगे या नहीं, ये भी नहीं, nobody knows about that also. So that is the reason you can easily criticize Modi. You can do that. But you cannot criticize your own installation. You do not have the bloody guts to come up and say this, ki yes, it was our country, our people who actually did this Islamist terror. You do not have the bones to, you do not have the guts to accept it.
You do not have the guts to accept it. It's as simple as that. You are nothing. Your stupid celebrities जो हम लोग के यहाँ से millions of views लेकर के पैसा बना रहे थे, now they're like, yeah, India ये क्यों कर रहा है, India ये क्यों कर रहा है, we've been standing with India. कोई celebrity ये नहीं था जिसने पहलगाम के बारे में नहीं बोला. अरे भैया एहसान नहीं किया है तुमको, यहाँ से viewership चाहिए थी. It's the moolah that you were raking in. That's it. Simple. Nothing more than that. And so when it is like that, when there is nothing more than that, you know it was your credibility at stake. That is why you were doing this. Not for the sake of humanity. Humanity and Pakistan do not go hand in hand. Okay? Big time liars. And that is the reason that we gave a very strong message today that two brave female officers, one from the Territorial Army and one from the Indian Air Force, were there to address the press conference that took place today. You might have internal support from people who are politicizing this fact. Yes, it's a shame that we have such kind of people in India, but also we do have people who are supporting our PM unequivocally, our Ajit Doval, our forces. We do stand with them. जिस तरीके से तुम ढोंग करते हो ना खड़े होने का, हम एक्चुअली उनके साथ खड़े हैं. तुम्हारे अंदर गट्स नहीं है, इस बात को तुम बहुत शानदार तरीके से मान लो. तुम एक डरी हुई कौम हो, एक नंबर के फट्टू हो. तुम लोगों से कुछ नहीं हो सकता सिवाय सोशल मीडिया की बकवास करने के. ये तुम लोगों को बहुत अच्छा आता है. वैसे ये बात तो आई हैव टू गिव इट टू यू ऑल्सो दैट यू नो रियली वेल हाउ टू प्ले अ विक्टिम कार्ड, call Indians cowards and all of that stuff. What were you? What were those bloody militants doing on 22nd of April in Pahalgam when they shot those people by asking their religion? They pulled their bloody pants down. That was not a cowardly attack. That is your sickening mentality. We do it. A child was maybe killed or injured or maybe not at all. बकवास videos, fraud videos करके तुम लोग को लगता है कि तुम पूरी world से sympathy लोगे. Nobody is even bothered about Gaza anymore. और वहां के लोगों को बुला करके तुम लोगों ने जो ट्रेनिंग दिलवाई है ना अपने यहाँ के, तुम लोग किस बात की मिर्च लगी है भाई? वैसे भी मसूद अजहर के यहाँ के लोग मरे, वो तो वैसे भी प्रोक्लेम टेररिस्ट है. तुम लोग को बड़ी मिर्चें लग रही हैं. किस लिए लग रही हैं उसके लिए मिर्चें? जब उसने इतने मासूम लोग की जाने ली हैं भारत में, तब तुम लोग को मिर्च क्यों नहीं लगी? कहाँ थे तुम तब? क्यों चुप थे? क्योंकि तुम हो नालायक हो, तुम बेशरम, और तुम्हारे मुंह पे बोलना चाहिए. वैसे भी तुम इतने बेशरम हो, तुम्हें कोई कितनी भी गाली देते तुम बेशरमों की तरह वहां खड़े रहते हो. सऊदी से तुम लोगों को निकाल दिया जाता है क्योंकि तुम वहां भीख मांगने चले जाते हो. उसके बाद भी बेशरमों की तरह वहां पर वापस अपनी कंट्री में लौट कर कहता कि सऊदी इज नॉट अ मुस्लिम स्टेट. तो भाई तुम क्या हो? तुम तो ऐसे कन्वर्ट्स हो जो ना तुम अपनी एंसेस्ट्री को मानने वाले हो, ना तुमको, देखो फैक्ट है, टर्की के कैलिफेट से तुम्हारा कोई लेना देना है नहीं. सऊदी अरेबिया जहां से आपके इस्लाम की उत्पत्ति हुई है, वहां से आपका कोई लेना देना नहीं है. अब है क्या? दोबिया कुत्ता ना घर का ना घाट का. अभी क्या है कि हमें अलाइन तो करना पड़ेगा ना इस्लामिक रिचुअल से. तो हम ओआईसी के साथ जाकर कर लेंगे, ये कर लेंगे. ओआईसी एक वर्ड वो स्टेटमेंट निकालेगा कि इंडिया ये कर रहा है, वो कर रहा है. नोबडी गिव्स अ डैम. आपने अगर सुना नहीं है देन लेट मी टेल यू दिस, क्योंकि आप लोगों को अंग्रेजी शायद ज़्यादा समझ में नहीं आती है. हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर, उन्होंने स्ट्रेट अवे ये बात बोली, और उन्होंने यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में बोले, लेकिन मैं आपको ये बात समझा सेट कि वी नीड पार्टनर्स नॉट प्रीचर्स. इसका मतलब ये है कि हम वो लोग चाहते हैं जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हो, ना कि जो हमें बकवास करे. स्ट्रेट अवे उन्होंने ये बात बोल दी है कि अगर आइंदा से कोई भी इस तरीके की पार्टी या कोई भी ऐसी कंट्री या कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि हमारे हित में नहीं है, हम नहीं सुनेंगे. तुम बेकारी हो, हम बेकारी नहीं है. तुम कटोरा लेके घूमते हो, हम नहीं. तो तुम्हें दूसरों की सहायता चाहिए, तुम उनके पैरों पे गिड़गिड़ाओ, हमें मत बताओ, क्योंकि तुम हो ही उस लायक. जो तुम्हारी ये डेड ब्रेन कॉम में जो तुमने सब सो कॉल्ड ये जो जहालियत तुमने डाल रखी है ना, इसको अपने तक सीमित करके रखो. ये जो एक तुम्हारी ये वाकई में यू आर लाइक नथिंग, यू आर जस्ट लाइक दैट हाइड्रा. एक काटो दूसरा, एक काटो सर दूसरा, एक काटो दूसरा. भाई ये तुम्हारी हालत है. अपना दिमाग ठीक करके रखो. तुम लोग अपनी औकात समझो कि क्या है. बेसिकली जो तुमने 23, 24, 25, 30 करोड़ जितनी भी ये पॉपुलेशन हो, यू आर नथिंग मोर देन अ टिकिंग बॉम्ब. सोशल मीडिया पे आकर के यू पीपल आर सेइंग भाई इंडियंस आर रुथलेस, इंडियंस ऐसे बदतमीज है, हमारे सेलिब्रिटीज को कुछ कह रहे हो, हमारे सेलिब्रिटीज को एक साथ हो जाना चाहिए. भाई तुम्हारी क्या औकात है? क्यों कोई सुनने वाला है? और मैं पता पढ़ती इसलिए बिकॉज बड़ा मजा आता है, एक्चुअली मजा आता है, बिकॉज यू हैव नथिंग मोर देन दिस टू डू. कुछ नहीं और है. जहां पर पे स्ट्राइक्स हुए हैं वहां पर पे वो प्रूवन था, जो 26/11 की जिससे कि ट्रेनिंग हुई है जहां पे टेररिस्ट की, वहां वो वाले कैंप्स पे अटैक किया गया है. तो पहलगाम में अटैक हुआ है उस टेरर कैंप की ट्रेनिंग जहां पर ये जिन टेररिस्ट की, वहां पर अटैक किया गया. तो वहां बच्चा कर क्या रहा था, वहां मॉस्क क्या कर रहा था, वहां स्कूल्स हॉस्पिटल्स कर क्या रहे थे. अब तुम्हारी लंका लगी है कायदे से, बहुत कायदे से. और ऑपरेशन सिंदूर, तुमने हम लोग के यहाँ की 26 महिलाओं के 25-26 महिलाओं के सिंदूर हटाए हैं ना. तुम लोग तो सिंदूर लगाते ही नहीं हो. तुम लोग तो ऐसे ही मिट जाओगे, पता भी नहीं चलेगा. और वॉर करनी है तो आ जाओ, बिकॉज इस टाइम पर पे ना
मैं उन सेक्युलरिस्ट और लेफ्टिस्ट की बात नहीं कर रही हूँ। सब उतर के आएंगे, चलो सब उतर के आएंगे, और उतर के आएंगे तो तुम अपनी औकात देखना। बाय द वे, तुम लोगों को जूस से बड़ी परेशानी है, यू ब्रेन डेड फूल्स। टेल मी वन थिंग, कोल्ड ड्रिंक चलो फेंक दी, कोल्ड ड्रिंक से तुम टॉयलेट अपने साफ कर रहे हो, चलो ठीक है। मैकडी में वहाँ जाकर के तुमने तोड़फाड़ करी जहाँ पे तुम्हारे लोग काम कर रहे थे, तुम्हारी ही कंट्री में कुछ 2-4 पैसे की वो ग्रोथ कर रहा था, ज़्यादा तो कर नहीं रहा था, लेकिन फिर भी फ़ोन क्यों यूज़ करते हो भाई? फ़ोन पे बात क्यों करते हो? इंटरनेट क्यों यूज़ कर रहे हो? हैव सम शेम यू ब्लडी फूल्स, व्हाई द हेल आर यू यूजिंग ऑल ऑफ दिस? डोंट, इट्स हराम, इट्स मेड बाय यहूदीज, do you understand that? Don't do it. Don't use technology. You dare use it. If you have some spine, do not use technology. Why are you using all of these fighter jets and all? Because see, at the end of the day, Chinese people are kafirs, na? They don't follow Islam. Or the Uyghur Muslims ko wahan par utha karke they kill, they are like, you know, they'll shut down your mosques and everything. Why are you taking help from kafirs? You are hypocrites. Why are you relying on Donald Trump's statement? He is a Christian dude. He's a Christian. He is not a Muslim. He's a kafir. So if you're against Christians, you're against Hindus, you're against everybody who's not following Islam, then why the hell are you taking validation? Why are you going with your begging bowl in front of Russia? Why? Why are you doing that? You are losers. You are hypocrites. You have nothing to stand upon. You do not have an identity. The only thing that you can do is this, that okay fine, go, curse Modi, curse India, curse Hindus, curse everybody. That's all that you can do. क्योंकि तुम ना तो मुस्लिम हो पूरे, ना तो तुम अपनी सनातनी रूट्स को भूल पाए हो कि अपने इवेंट्स में तुमको शादियों में मेहंदी भी करनी है, हल्दी भी करनी, कहाँ से हो गए भैया? इस्लाम में मेहंदी हल्दी का कहाँ से सिस्टम आ गया? Convenience, that's what you people are looking up to. So now your convenience is royally getting screwed up. That's all. And it better be. तुम लोग अपनी औकात समझ में आनी चाहिए। पता नहीं कौन से तुम दुनिया में रहते हो and you really believe that you won the wars. Really? Which one war you have won against India? Which one war? You have been nothing but sore losers, beggars, pathetic creeps, because that's what your grooming gangs are doing there in UK and in other countries. Take that, keep it in your mind, you'll need that. You're that shameless, once again I'll reiterate, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, झूठ फैलाओ, रो, स्टेटस लगाओ, तुम्हारे सेलिब्रिटी स्टेटस लगाएंगे क्योंकि अब यहाँ से उनको पैसा तो मिलने नहीं वाला है, तो चलो कुछ नहीं, थोड़ा सगाई दिखा दें अपने वो कंट्री के, वही तुम्हारी हरकत है। For that time being, I would really request you all to subscribe to this channel and do like, share and do post a comment. Post a comment अगर आपको हमारे content से अगर आप agree नहीं भी करे हो तो again we'll request you कि आप उसको थोड़ा सा moderate करके रखो. Otherwise, we'll block you from the community. We do not want any kind of toxicity. We want a healthy discussion, even if it is not aligning with our views. So, thank you so much and enjoy. But please do not become lazy. बिकॉज पाकिस्तान इज़ वन कंट्री, अगर हम उसको एक बॉडी की तरह लेकर के चले ना तो वो मेंटली अनस्टेबल है। वो सिर्फ बैठ करके पूरे टाइम यही बताता रहता है मेरे पास न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर है। भाई इस तरीके से न्यूक्लियर वॉर्स नहीं होती हैं। जो तुम्हारी ये बेवकूफ़ियाँ हैं इसको अपनी जेब में रखो और वहीं बैठे रहो। इस तरीके से न्यूक्लियर वॉर्स नहीं होती है, ठीक है? टिल दैट टाइम, थैंक यू सो मच, नमस्ते, बाय बाय।